بہت ساری جو رکاوٹیں یا تبدیلی کے پیچھے یعنی ترجمہ کرتے ہوئے بددیانتی سی بھی ہوتی ہے. کبھی بھی ادیبوں نے اپنے ٹرانسلیٹرز کو ٹرسٹ نہیں کیا، نہ ہی وہ کبھی راضی ہوئے. اور یہ اتنی مزیدار بات ہے کہ جب عبداللہ حسین کے ایک ناول دا ویری جنریشن کے نام سے، اور وہ خود اپنے ٹیکسٹ میں سے اتنا کچھ نکال گئے کہ آپ کی سوچ، بہت کچھ نکالنا پڑا انہیں، اسپیشلی وہ ساری چیزیں جو انگریز کے خلاف تھی. جب وہ اردو سے انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں تو یعنی یہ بیریئر، اب میں نے کہا کہ یہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں جو آپ بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہیں. اردو میں بڑھ کے مارنا آسان ہے، آبادکاروں کے خلاف بات کرنا آسان ہے، آپ ان کو گورا صاحب اور اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں. بٹ جب یا ان کا آپ ایک پورا واقعہ ہے ٹرین میں اس کے ساتھ مقامی آدمی کے ساتھ بدسلوکی کا، ترجمہ کرتے ہوئے عبداللہ حسین، کیونکہ ریڈر اب انگریز ہے، اب ریڈر یا ٹارگیٹڈ ریڈر خود نو آبادکار ہے، لہٰذا اس کے اندر سے وہ پورے کا پورا واقعہ ہی اڑا دیا. ٹھیک ہے. یا پنجاب کے کھیتوں کے بارے میں وہ جو ایک خوبصورت سا ایک منظر بناتے ہیں، وہ کہ کھیتوں میں سرسوں ایسے پھولی ہوئی ہے اور یہ ہوا چل رہی ہے، اور یہ وہ منظر نامہ بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے انہوں نے اللہ جانے کیوں اسکپ کر دیا اس میں سے. تو خود ٹرانسلیٹر جب ٹرانسلیٹ کرتا ہے، خود کریٹر جب اپنی ہی چیز کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے، تو وہ ایک زبان میں جس طاقت کے ساتھ اظہار کر رہا تھا، دوسری زبان میں اس طاقت کے ساتھ اور اس سارے ٹیکسٹ کو ایز اٹ از شاید منتقل نہیں کر پائے گا. اس میں لسانی عجز بھی آ جائے گا، اس میں آپ کے بیان کی کجی خامی بھی آ جائے گی، اور اس میں ریڈر کا یا آپ کے پبلشر کا پریشر بھی ہوگا، آپ کا اپنا ایز اے رائٹر امیج بھی ہوگا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آڑے آ جاتی ہیں. تھوڑی سی بات کروں گی جو کہ اس ترجمے، ہاں، ادبی متن کے اندر ایک اور بڑا ایشو ہوتا ہے، وہ ہے انٹر ٹیکسچویلٹی کا. یہ ایک ترجمہ کرتے ہوئے بہت اس سے مشکل ہوتی ہے. مثلا مجھے اردو آتی ہو اور یا مجھے انگریزی آتی ہو اور میں اس کو اردو میں ترجمہ کر رہی ہوں، اس کے اندر لیٹن بھی ہے، اس کے اندر رومن بھی ہے، اس کے اندر کوئی گریک فریز بھی ہے. اب یہ انٹر ٹیکسچویلٹی ہے، کیونکہ ایک متن کے اندر ہم جب لکھتے ہیں تو ہمارا مطالعہ بھی اس کے اندر جھلکتا ہے، ہماری تحریر کے اندر آتا ہے. ہم جو فریزز، جو ایکسپریشن یوز کرتے ہیں اپنی تحریر میں، ہم بعض اوقات کسی مقامی زبان کا کوئی اکھان، کوئی کہاوت، کوئی ضرب المثل لگاتے ہیں اس کے اندر، تو اس کو ترجمہ کرتے ہوئے یعنی وہاں پر بھی مسئلہ ہوگا. ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں جو ادبی ترجمہ، خاص طور پر اس کو کہتے ہیں یہ دو تہذیبوں یا ثقافتوں کی آپس میں گفتگو ہے. گفتگو سے مراد یہ ہے، ان کا مکالمہ یہ ہے کہ اس ثقافت میں جو کچھ ہے، یہ ثقافت کیا اس سب کو لے پائے گی؟ نہیں. ترجمہ کرتے ہوئے آپ بہت ساری چیزیں تو اندر سے نکال دیتے ہیں. مثلا این فرینک کی ڈائری مشہور ہے، اس میں فرسٹ ورلڈ وار میں، غالباً سیکنڈ ورلڈ وار میں، این فرینک کی ڈائری، تھینک یو ویری مچ، اس کو جب ٹرانسلیٹ کیا گیا مختلف زبانوں میں، وہ ایک چھوٹی بچی کی کہانی ہے جو نئی نئی بلوغت کے دور میں داخل ہو رہی ہے، اور وہ بنکر میں ہے، ود ہر فیملی ہے، وہ اپنے سارے ایڈونچرز بھی لکھتی ہے، جو ایک نوجوان لڑکی کے طور، جوان ہوتی ہوئی لڑکی کے طور پر جو اس کے ہارمونل چینجز ہیں یا وہ ان چیزوں کو بھی لکھ رہی ہے، اور وہ جرمنز کے سارے ستم بھی دیکھ رہی ہے. تو بعد میں جب وہ مختلف زبانوں میں ترجمہ ہوئی اور خود جرمن زبان میں اس کا ترجمہ ہونا تھا، تو جاپنیز میں ترجمہ ہونا تھا آئی گیس، تو اس کے والد نے کہا کہ اس میں سے بہت ساری چیزیں نکال دیں، اس لیے کہ وہ والی ریڈرشپ ہرٹ ہو جائے گی، اور اس میں جتنا بھی اس کا جو سیکشل ایکٹیویٹیز والا پارٹ ہے، یا اس کی فیلنگز ہیں، یا اس کی اڈلٹ ہوڈ کی جو بھی فیلنگز ہیں،
उन सबको निकाल दें, क्योंकि अब वो एक बड़ी औरत है और ऐसी बातें उस बड़ी औरत के शायान शान नहीं है कि उसकी तहरीर में ऐसी चीजें आए। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी, एक मिसाल जो मुझे याद आ रही है वो ये तर्जमा करते हुए आपके मुतरजम का इखलाकी मयार या ये चीजें कैसे आ जाती हैं सामने। एक कोई पादरी थे, वो तर्जमा कर रहे थे एक ग्रीशियन पीस ऑफ आर्ट का, उसके अंदर विडोज प्लेजर के नाम से किसी सेक्सुअल इंस्ट्रूमेंट का जिक्र है। तो उन्होंने उसको पूरी सिचुएशन को चेंज करके तो वहां पे चमड़े का गुलदान रख दिया। ठीक है, मसलन उसमें असल मतन में वो उस खातून की सेक्सुअल प्रेफरेंसेस को या उसकी उस पोटेंशियल को बयान कर रहा है, लेकिन मसलन कारी को चूंकि पता ही नहीं कि असल मतन में ये क्या चीज पड़ी थी जिसे आपकी इखलाकियात ने गुलदान की शक्ल में बस एक साइड पे सजा दिया हुआ है। तो इस तरह की चीजें, फिर हिटलर की आप बीती मैं जब उसको देख रही थी ड्यूरिंग माय रिसर्च, तो डिबाचे में लिख रहे हैं साहब ट्रांसलेटर कि हिटलर हमारी तारीख, इंसानी तारीख का एक काबिल नफरत किरदार है, और उसकी आप बीती को तर्जमा करने के पीछे मेरा इसके पसे पर्दा मेरे जो हकायक हैं या जो मुहर्रिकात हैं वो ये हैं कि लोगों को मालूम हो कि इस किस्म का करी और खराब कैरेक्टर का आदमी जो है वो इंसानियत के लिए कैसा, आप इंटेंशन ये लेके कर रहे हैं, तो कहीं पर जाकर आपने क्या क्या चीजें, यानी उसको हो सकता है आप डाउटफुल हो जाते हैं ना उस मुतरजम के बारे में कि ये उसको अब ये उसकी हर बात में कराहत बना के रहेगा, ये उसको मजीद विलन बनाएगा कि कहीं उसकी कोई इंसानी खूबी कारी के सामने ना आ जाए। यानी एक टारगेटेड, जैसे मैंने शुरू में लफ्ज इस्तेमाल किया कि एक टारगेटेड इमेज है, उसके लिए फिर तर्जमे में जो तब्दीलियां आ जाए, या मुतरजम जब दखल अंदाजी करते हैं वो ऐसे ब्रैकेट के अंदर जाके तो लिख रहे होते हैं, मसलन कहेंगे कि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और अंदर ब्रैकेट में लिखेंगे कि माशाल्लाह, या चश्मे बद्दू टाइप की बातें लिखाते हैं। तो इस तरह के इजाफे भी हैं, हज़फ करने की तो मैंने 2-4 मिसालें दी हैं। तो ये सब हम क्यों करते हैं, मुतरजमीन क्यों करते हैं? ये हम क्यों करते हैं कि तर्जमा करते हुए हम असल टेक्स्ट को चेंज करते हैं, उसे मोल्ड कर देते हैं, हज़फ कर देते हैं। वो क्या अवामिल हैं, वो क्या अनासिर हैं जो तर्जमे में बदउनवानी पर हमें मजबूर करते हैं? सब इस पहले ट्रांसलेटर को सिर्फ एक पुल का दिया गया ना, लेकिन अभी जब ये समझ आई कि ट्रांसलेटर तो असल आदमी है, हम कॉमेडी में ऐसी चीजें देखते हैं कि एक आदमी, दो आदमी खड़े हैं जो एक दूसरे की जुबान से नावाकिफ हैं, तो तीसरा आदमी मिस कम्युनिकेट करता है। ट्रांसलेशन बुनियादी तौर पर मिस कम्युनिकेशन का भी एक जरिया है, हमें नहीं पता, हम देखते रहते हैं वो उसकी। मुझे याद है कि मैं छोटे होते मास्टर्स जब कर रही थी तो उस टाइम एक खातून थी हमारे मलकवाल की, वो बात करती थी अरबी में, उनका मास्टर्स था गालबन। उन्होंने कहा कि जॉन कीट्स अल्लाह का वली था। अच्छा, कैसे? उन्होंने कहा कि देखें, वो उसकी लाइन है ना, वुडन ग्रीशियन अर्न के ब्यूटी, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी ट्रूथ, दैट्स ऑल यू नीड टू नो ऑन अर्थ, ये वाली उसकी आखिरी सूरत। उन्होंने कहा कि देखें, कहते हैं कि हुस्न मुतलक हक है और हक ही हुस्न मुतलक है। अब ये जब आपने देखा ना, मुतरजम ने तर्जमा करने के लिए हक और हुस्न और सच के लफ्ज को जब हुस्न मुतलक और हक में किया तो उसकी अपनी एक खास उसकी शख्सियत आ गई, और जॉन कीट्स हकीकत में अल्लाह का वली दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो आप एक खास तरह के डिक्शन में आप उसको तर्जमा कर रहे हैं। तो ट्रांसलेटर तर्जमा करते हुए क्या डिक्शन अपनाता है, ये बहुत मानी रखता है। दूसरा ये कि उसको कितना मालूम है, उसका इल्म कितना है किसी चीज के बारे में। यानी अगर तो वो ये समझता है कि दुनिया का हर शायर सिर्फ सूफी शायरी ही कर रहा था, तो
फिर उसका तासुब है, तासुब पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। बाज लोग खुद ही तब्दील कर देते हैं कि ओहो ये अच्छा नहीं लगेगा अगर शेक्सपियर के बारे में ये बात पता चले कि वो मसलन लेट्स से कि कोई रेसिस्ट जुमला बोला, नहीं नहीं ये तो इमेज खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं लग रहा, इट डजंट गो विद हिज इमेज, आपने चेंज कर दिया। ये आपका तासुब है पॉजिटिव राइटर के साथ। और दूसरा है नेगेटिव कि आपने अच्छा जुमला देखा और कहा कि यार ये इस आदमी के मुंह से नहीं सज रही बात, तो आपने उसको फिर चेंज कर दिया। तो मुतरजम का, ट्रांसलेटर का जो भी तासुब है वो भी इस पे आएगा, उसका अपना ज़ौक क्या है, कोई तर्जमा करते हुए कौन से क्या लफ्ज, क्या ख्याल, क्या बात लेके आता है, ये तो ट्रांसलेटर एक बड़ा मरकजी किरदार बन जाता है। ठीक है, वो जो हम समझते थे कि ये मैकेनिकल है, ज़हनी मजदूरी है, एक मशीनी सा काम है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मुतरजम बहुत बड़ा ये मैनिपुलेटर है, ये मैनिपुलेट करता है पूरी सिचुएशन को, अपनी मर्जी के मुताबिक पेश करेगा। ठीक है, फिर जो इस पर असर अंदाज होते हैं तर्जमे के मयार पर, वो पब्लिशर्स होते हैं। पब्लिशर जिस टेक्स्ट को तर्जमा करना चाहते हैं और जैसा करना चाहते हैं, अगर वो कहें कि ये मतलब मेरी एक पब्लिशर से बात हुई तो उसने कहा कि हरारी का एक बड़ा गर्मा गर्म किस्म की किताब आई उसकी, ठीक है, या वो असलूब, क्योंकि उन्होंने देखना है कि ये बिकेगा, किस रीडर के पास जाएगा या किस उसलूब में लिखा गया तो ज्यादा बिकेगा। चुनाचे वो कहते हैं कि ये बेशक जिस भी उसलूब में लिखी हुई चीज है, आप इसको ऐसे कर दें कि 7वीं का बच्चा भी पढ़ ले, तो जाहिर है कि इल्मी और फलसफियाना जो भी मसाइल होंगे वो 7वीं के बच्चे के उसलूब में आप लिखेंगे तो वो अपने लेवल से बहुत नीचे आ जाते हैं। अच्छा, पब्लिशर बला लगती है हमें, लेकिन उससे भी ज्यादा जो ताकतवर तबका होता है ना, वो रीडर है। ये वो चीज है, ये वो बंदा है, ये वो ताकत है जिसके लिए पब्लिशर छापेगा, मुतरजम तर्जमा करेगा और कारी वो क्रिएटर लिखेगा, राइटर लिखेगा। तो कहीं पर अगर किसी जुबान में अगर अच्छा तर्जमा नहीं हो रहा तो फिर ये खुद कारीन के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। और यानी या तो किताब खरीदने वाले ऐसे लोग हैं जो उस लेवल से ऊपर तर्जमे को जाने नहीं देंगे। आखिरी बात जो इस सिलसिले में मैं करके तो फिर अपनी बात को खत्म करूंगी, वो ये है कि ये कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह की मौजूदगी में इन सारी बातों का जवाब क्या है। यानी अब तो आपने देखी है एप्स हैं, सामने वाला आदमी, दो लोग आपस में सिर्फ इन ट्रांसलेटिंग एप्स की बेस पर रिश्ता बना जाते हैं। ठीक है, बोलते नहीं है, यहां से लिखा, सामने बैठे हैं और कम्युनिकेट थ्रू मशीनरी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये सारी मुश्किलात ये कहां पेश आएंगी, आप कंप्यूटर को बताएं। इस वक्त तो इवन क्रिएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं रह गया। सोफिया जो ह्यूमनाइड रोबोट है, उसने शायरी करके दिखाई है आपको, तो इट्स नो मोर दैट इल्हामी थिंग और सम, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो नज़्में लिख रही है। जीपीटी उससे बड़ी बला है। मैं आजकल उसके साथ गपशप लगाती हूँ, तो मैंने उसको कहा कि जरा सैडनेस पे नज्म लिखो, 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर उसने सैडनेस पे नज्म लिख दी। अच्छा, अब मैंने उसी कंटिन्यूटी में सिर्फ एक वर्ड और लिखा, लव, उसने उसी बहर में वो अब लव के ऊपर लिखना शुरू हो गई है। फिर मैंने कहा कि अच्छा थोड़ी सी कोई हम अपने दिल के लिए कोई तसल्ली ढूंढे। मैंने उसे कहा कि यार जुदाई पे नज्म लिखो, उर्दू में लिखा। मैंने कहा उर्दू बोल सकती हूँ, कहते हैं हाँ। मैंने कहा अच्छा जुदाई पे नज्म लिखो, कहती कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है मुझे थोड़ा सा मुझे इसके वेयर अबाउट्स बताएं, कुछ इसकी तफसीलात दें, तो फिर मैं इस पे बात कर सकती हूँ। तो मैं सोफिया को कोट करते हुए अपनी बात खत्म करूंगी। उसने कहा, उससे जब बात हो रही थी कि भी तुम तो इंसानों को खा जाओगी जिस तरह से तुम हो, शी सेड, और उससे पूछा गया नज्म वगैरह शायरी कर लोगी, तो उसने कहा कि यस आई कैन राइट पोएट्री विच कैन बी टेक्निकली राइट, टेक्निकली परफेक्ट है, लेकिन शायरी सिर्फ टेक्निकलिटी नहीं है, वो उसको फीड की हुई चीजें हैं,
وہ اس کی بنیاد پر کہ اچھا مثلاً روایت دیکھتی ہے نا شاعری کی کہ شاعر کس کس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ چونکہ اس کے پاس ڈیٹا اس میں فیڈڈ ہے لہذا وہ اس کی بیس پر جلدی جلدی لکھ کے آپ کے حوالے کرتی ہے. تو اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا نہیں مجھ سے انسانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اور انہوں نے پوچھا تم میں ایسا کیا ہے، تم میں ایسا کیا نہیں ہے جو انسانوں کے پاس ہے. اس نے کہا ان میں روح ہے. یہ جو روح انسانی ہے وہ یہ گنجائش ہمیں دیتی ہے کہ مشین کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی بات بتا لیں گے. وہ ہمارے کسی ایک بات کو، اس بات کے ایک لفظ کو لے کے وہ ٹرانسلیٹ ہمیں کر دے گی، لیکن ہمارے ارادے کو، ہماری نیت کو آپ نے دیکھا ہمارا سارا تو کھیل یہ ہے کہ ہم پازیٹیو سے پازیٹیو لفظ کو ہم ہمارے لہجوں سے پہچانے جاتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے. ہمارا لہجہ تعین کرتا ہے، ہماری نیت تعین کرتی ہے اس کا. تو وہ کمپیوٹر یا مشین کم از کم ابھی اس کو نہیں کر پائے گی. چنانچہ وہ ہمارے یعنی ٹرانسلیٹرز کے ہیلپرز رہیں گے، ہمارے مددگار رہیں گے، مشین ہماری مددگار رہے گی. لیکن کون سا لفظ کہاں لگے گا، یہاں پر منشائے مصنف کیا تھی، منشائے مصنف کیا تھی، یہ ڈیسیژن میں لوں گی، آپ لیں گے بینگ ہیومن. کیونکہ ہم نے وہ کہتے تم نے عشق کا نام سنا ہے، ہم نے عشق کیا ہے، تو ہمیں معلوم ہے، ہم اس سچویشن سے گزرے ہیں. ہم بینگ ہیومن یہ پریڈکٹ کر سکتے ہیں کم از کم کہ یہاں پر کیا بات ہو سکتی تھی. بہت شکریہ. انڈر بریکٹ ماشاء اللہ. السلام علیکم. بہت خوشی ہوئی، بہت بڑا. یہاں قومی زبان نے یہ کام کیا کہ جی یہ جو انگلش ورڈ ہے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے انہیں تبدیل کیا جائے. تو تبدیل کرنے سے انہیں ایک اور مطلب انہوں نے ایک لاؤڈ اسپیکر کا ترجمہ کیا تھا کہ اعلیٰ مکبر صوت، تو اس کو مزید ترجمہ کرنا پڑتا تھا. یہ اس سے زیادہ انڈیکیٹر کا ترجمہ اس سے زیادہ مزاحیہ تھا، اور وہ تھا برقی کمکما برائے تعین سمت. میں کہتی ہوں کہ جتنی دیر میں آپ یہ ترجمہ بولتے ہیں اتنی دیر میں کئی انڈیکیٹرز گزر چکے ہوئے ہوتے ہیں. میں نے ایک کتاب دیکھی مائیکل ہارٹ کی دی ہنڈریڈز، تو اس کا پہلا حضور کے بارے میں یا اس سے حضرت محمد کے بارے میں لکھا تھا. اس کا پہلا جملہ یہ تھا he is the author of Holy Quran. جب میں نے اس کا ترجمہ اردو میں دیکھا تو اس میں یہ بات نہیں تھی، اس میں کچھ اور تھا لکھا ہوا کہ ان پر نازل ہوا قرآن میں. تو یہ بدیانتی بھی ساتھ ساتھ کیا چلتی ہے، یہ بھی میرا خیال ہے وہ سماج کی مجبوریاں ہوتی ہیں. جی جی قارئین، میں نے کہا کہ یہ بلا ہے سب سے بڑی. اگر آپ ایسا کوئی ترجمہ لائیں گے، ایک ترجمہ کیا ایک چھوٹا سا یعنی ریلیجس آدمیوں سے ریلیٹڈ جو بھی معاملات ہیں، ہم امہات المومنین اور وہ پڑھتے ہیں نا ڈپٹی نذیر احمد نے امہات المومنین غالباً لکھی. اچھا نہیں کتاب ہے. اچھا اس میں کہتے ہیں کہ ہجرت کا واقعہ تھا، تو اس میں انہوں نے لکھا کہ حضور اس رات سٹک لیے. ٹھیک ہے، سٹک لیے مینز چلے گئے، چپکے سے چلے جانا. اب اس طرح کے محاوروں کی وجہ سے اس کے خلاف ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. میننگ اس کا وہی ہے، چپکے سے نکل جانا. لیکن سٹک لیے اور خاموشی سے یا رات کے اندھیرے میں وہاں سے فلاں کی معیت میں تشریف لے گئے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بیانیہ جو تھا مروج اس کے خلاف تھا یا خلاف ادب سمجھا گیا، اسے سوء ادب سمجھا گیا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ایک پورے کی پوری مثلا ایک الگ بحث ہے نا. اگر ایموشنل ورڈ ہے تو اس کے متبادل ایک ایموشنل ورڈ اس کی میموری میں جو کچھ ہے وہ اس کو کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا ادھر اس میں یعنی جو ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں میڈم ایکسکیوز می، تو اس میں جیسے میرے والد ٹیچر ہیں تو میں نے اسے گرامر پڑھا ابا سے، تو اس گرامر کا کتنا رول ہے اس میں ٹرانسلیشن میں؟ جیسے پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، فیوچر ٹینس یا باقی ٹینسز میں ٹرانسلیشن میں ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیں یہ کسی بھی زبان کا جو گرامر کے تھرو ہے نا، یہ ٹرانسلیشن کی بالکل بیسک شکل ہے. آپ لینگویج سیکھتے ہیں، پہلے آپ لینگویج کے آپ گرامر، آپ سنٹیکس وغیرہ سیکھتے ہیں، چیزوں کو سیکھتے ہیں، اور یہ پہلا سٹیپ ہے اس کے. ہم تھوڑا سا اس سے اوپر جا کے بات کر رہے ہیں.
जहाँ पर आप कंटेंट को यहाँ ला रहे हैं, आइडिया को ला रहे हैं, जो ग्रामर वगैरह वो अब मसलन जब मैं कह रही हूँ कि माहिर ज़ुबान होना चाहिए, तो महारत नॉलेज से ऊपर का लेवल है, एक्सपर्टीज़ ऊपर का लेवल है। जिसको ग्रामर नहीं आती वो महारत का दावा कैसे कर लेगा? तो जी आप हाँ, मैं असल में ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपने एक बात की कि सबसे अहम तो रीडर है जिसके लिए आप तर्जुमा कर रहे थे, और जैसे ट्रांसलेशन आपने कहा कि वो एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान में मफ़हूम मुंतकिल करने का नाम है। हमारे जो मैंने बातें भी सुनी, और हम एक दफ़ा ये सोचते हैं हमारे माशरे में कि जब भी आप कोई तर्जुमा करें किसी चीज़ का, तो एक खौफ लाहक रहता है कि आप बात हदूद से बाहर नहीं निकल सकते। हमारे लिए इल्म को फैलाने में ये बहुत बड़ी रुकावट है। जो नेचुरल साइंसेज है स्पेशली, चूँकि पढ़ने वाले भी उसके नहीं हैं, लिहाजा शायरी, अदब, ये जो कि ह्यूमन इमोशंस के साथ हैं, मौसीकी थोड़ी बहुत चल रही है, वो भी बहुत क्रिएटिव लेवल पर नहीं कि बड़े गुलाम अली खान पैदा हो जाए इस माशरे में। लेकिन ये जो पॉइंट है कि आप नेचुरल साइंसेस, ये रोबोट और इतना कुछ हो गया जिसने हिला के रख दी हैं बुनियादें हमारे बहुत सारी चीज़ों की, जिसमें एतकादात भी शामिल हैं। ये जब तक हमें खौफ रहेगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के आने से हमारी चीज़ें धर्म भरम हो जाएंगी, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले आप चूँकि तर्जमा भी करती हैं, आप लिख भी सकती हैं, जाहिर है कि ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत है कि ये खौफ ख़त्म कर देना चाहिए। अगर कोई सोसाइटी कमज़ोर है और तख्लीक नहीं कर रही, तो उसको मजबूरन दूसरों की तख्लीकात की कदर करनी पड़ेगी और उनसे लेना पड़ेगा। हम माने या ना माने, इसको भी अगर देख लें, हम बहुत डरे हुए हैं कि हमारा क्या बनेगा, क्लासिकल चीज़ों का, फलानों का। कौन सी चीज़ है कि जो तकरीबन वेस्ट से, तरक्की याफ्ता कौमों से नहीं आई या इनडायरेक्टली हमने वहाँ से मिली, जैसे लाइट वगैरह। तो मैं ये समझता हूँ कि इतना ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं तर्जमे से, और हमें नेचुरल साइंसेस स्पेशली और इवन सोशल साइंसेस में भी जो थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें हैं, उन्हें हम बहरहाल बहुत दलेरी से तो ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। और आप जैसे लोगों को मैं ये समझता हूँ, क्योंकि हम तो तर्जमे के लोग नहीं, कि इस तरफ बहुत तवज्जो देनी चाहिए नेचुरल साइंसेस की ट्रांसलेशन। ये एक रिक्वेस्ट है जी बिल्कुल, तर्जमे की तरफ ध्यान देना चाहिए। और हम बुनियादी तौर पर कंज्यूमर सोसाइटी हैं, हम किसी भी तरह से सेलर्स में या उस तरह नहीं आते। हम नज़रिए, मज़हब, मुआशरत, अक़दार, अफ़कार, हर चीज़ हम उसके बायर्स हैं, हम उसको ख़रीदते हैं। और हमारे यहाँ वो कभी कहीं से, तो लिहाजा ये एक ओपन मार्केट है, इसमें कभी कहीं से आके कुछ बिक रहा है और कहीं से। आप कह रहे हैं कि हम एक वीक सोसाइटी हैं, ये बात आप बाहर निकल के कह के देखें। हम एक स्ट्रॉन्ग सोसाइटी हैं, हमारे अबाउट दाद ये थे और वो थे। लाइक हम आज से कुछ 1.5 सदी पहले का बयानिया जो था वो हम, यानी हम तो वैसे ज़वाल याफ्ता कौम के हर उस खूबी से माला माल है ना। तो आप ये चीज़ तो बाहर रियलाइज़ करवा ही नहीं सकते कि कुछ ख़त्म हो रहा है या जा रहा है। जो अब ट्रेंड चल निकला है, मेरा ख्याल है कि लेट द टाइम डिसाइड कि किधर जाके तो आपका ये एंड कहाँ पे होता है, बस ये बैठ के बात ही कर सकते हैं हम लोग। जी मेरा ख्याल है कि खौफ तो है कि टेक्नोलॉजी के आने से बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात है गूगल भी इस साल जो है हज़ारों लोगों को निकालने के चक्कर में जॉब से, और मुख्तलिफ ऐप्स हैं जो अपने लोगों को फारिग कर रही हैं क्योंकि उनके काम उन्होंने आर्टिफिशियल ने संभाल ली। इसी तरह हम जो आपने प्रेस की बात की कि 300 साल के बाद कोई प्रेस हमने अडॉप्ट की और सारा कुछ हुआ, तो हमने अपने बच्चों को मोबाइल छीन लिया। किसी हमारा जो एक जहन है ना कि बच्चों के आगे मोबाइल नहीं दे, ख़राब हो जाएंगे, फ़ोन देखेंगे, फलानी चीज़ें, सारी चीज़ें, फिर कौन नहीं देखता। अभी नहीं देखेंगे, 18 साल के बाद देखेंगे ज़रूर, लेकिन वो पीछे रह गए उन कौमों से जिन्होंने इस पर आगे निकल गए। अब हिंदुस्तान की IT देख लें, गूगल तक के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारे अभी तक ये है वो नकली बाल लगा लो तो नमाज नहीं होती। कल ही मेरी भतीजी से बात हो रही,
नहीं वो यार सर, ये ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत छोटी सी बात कर रहे हैं यार, वो तो रोजा रखने के दौरान आप इस्तंजा नहीं कर सकते। हाँ, सांस नहीं ले संजय सकते। के आदाब के ऊपर बाकायदा मेरे हस्बैंड ने कल मुझे बताया कि यहाँ इटली में था, और इटली में मौलवी साहब बैठ के संजय के आदाब, वो मसलन वो कहता है कि ऐसी लज्जत आमेज उर्दू में बात कर रहे थे कि खाम मजा आ रहा था सुनने में। कहने का मतलब यही है कि हमने ये तो बड़ी अपने बात है बच्चों ना, को, बात अपनी बात। नस्ल को खुद जकड़ा है इन सारी चीजों से। अब मेरी छोटी सी बच्ची है, मैं कहीं फंसता हूँ मोबाइल में उसके हवाले कर देता हूँ, ठक 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 मुझे निकाल के दे देती है। तो ये तो एक है ना चीज। जब मैट्रिक्स फिल्म आई थी, वो आज से कई सालों पहले आई थी, तसव्वुर भी नहीं था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। उसमें चलते फिरते रिपोर्ट दिखाया उन्होंने, सब कुछ उनकी फाइट दिखाई रिपोर्टों के साथ। हो सकता है कि 200 साल के बाद ये मरहला आए जल्दी कि इंसानों की सूरत में वो हमसे जंग करें। सर वो ये ज़ाहिर है IQ के मुकाबले में अब EQ है ना, तो वो ज़ाहिर है कि इंटेलिजेंस को रिप्लेस या रिप्रोड्यूस तो कर रहे हैं, बहरहाल इमोशंस वाला सिस्टम तो भी आपके साथ ही है। तो हमारी जो दूसरा हमने generation जो है, भी चीज़ आई है 30-40 साल जिनके रह गए, मैं 30 साल इसलिए बोल रहा हूँ कि वो 80 में भी जाएगा, तो उनको तो कोई खौफ नहीं है, उन्होंने गुजार दिया। लेकिन जो अभी पैदा होने शुरू हुए ना, उनके लिए तो होता अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि सैर हासिल गुफ्तगू हो चुकी है, क्योंकि टाइम को भी देखना होता है। तो मैं हसीब साहब से गुजारिश करूँगी कि ये इसको कैसे सम अप करते हैं, उनको कैसे इसका उनके जहन में इसके हवाले से क्या। बात यह है कि मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ इस फोरम का कि मुझे मुझ नौमारद को आपने मौका दिया, इज़्ज़त अफजाई की कि कुर्सी सदारत पर बिठाया, बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं इंतहाई ममनून हूँ डॉक्टर आफरा का कि जिन्होंने एक सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई है ऐसे मौजू पे जो बज़ाहिर बड़ा खुश्क लग रहा था, लेकिन जिस तरह से इन्होंने मिसालों के साथ और जिन डायमेंशंस पे बात की है, मेरी तवक्को से वो बहुत बढ़ गई। इसका एक फ़ायदा ये भी हुआ है कि मैं काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश रखता था कि जब मुझे फ़ुर्सत होगी तो मैं ये ट्रांसलेशन का काम करूँगा, लेकिन ये बात आज मुझे वाज़े हो गई कि ये कल्ले बंदे का काम नहीं है। तो इट्स अ वेरी टेक्निकल जॉब। इसके अंदर इसकी जो डायमेंशन उन्होंने डिस्कस की हैं, फिर इसके अंदर जो कल्चरल, टेक्निकल और इकनॉमिक इश्यूज़ और आइडियोलॉजीज़ के हवाले से गुफ्तगू की है, वो बहुत मुतासिर कुन है। मैं 1979 में इंडिया गया था क्योंकि मेरे वालिद हैदराबाद दक्कन से बिलोंग करते हैं, तो मुझे उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। तो मैं उस वक्त देख के मुझे हैरत सी हुई थी कि उन्होंने बहुत साल पहले वो तमाम साइंटिफिक टर्म्स का उर्दू में तर्जुमा कर लिया था, और मैं यहाँ बहुत अरसे तक इस बात पे हैरान था, या नादिम कह लें कि यार हम इतना काम हो चुका है और हम लोग इन टर्मिनोलॉजीज़ को क्यों नहीं अडॉप्ट करते हैं। लेकिन आज ये बात भी वाज़े हो गई है कि साइंटिफिक टर्म्स को उन्हीं के ओरिजिनल फॉर्म में ही इस्तेमाल करना चाहिए। अडॉप्टेशन जो है लोकल वर्ड्स में वो सूदमंद नहीं है। ये जो आला मुकब्बरुस सौत वाली बात आपने की, ये हू बहू हमारे साथ हो चुकी। हम 7वीं जमात में पढ़ते थे, हमारे एक साथी थे, वो बहुत ऊंची अंदाज में गुफ्तगू करते थे, तो हम उनको लाउड स्पीकर कहते थे। तो एक दोस्त ने कहा यार आज अरबी के सर से कहते हैं कि इसका हमें कोई उर्दू का मुतबादिल लफ्ज़ बोल के बना के दें। तो हमने उनसे अपना मुद्दा बयान किया, तो उन्होंने कहा जी ये एग्जैक्टली उन्होंने आला मुकब्बरुस सौत बोला। हमने कहा जी ऐसी लाउड स्पीकर ही ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि मैडम आपने एक सैर हासिल प्रेजेंटेशन दी है, जिससे हमारी जहन में जो कुछ सवालात थे या उलझने थी वो वाज़े हो गई हैं, और आपने इस सब्जेक्ट की हमागिरियत को बड़ी अच्छी तरह से बयान किया है। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और